Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Right now, we will study functions of blood and some disorders related to blood. First of all, functions of blood. The overall functions of blood in the human can be listed as number one, maintenance of colloidal osmotic pressure. What is colloidal osmotic pressure? The pressure exerted by proteins that prevent the outflow of blood from the vascular space. ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन ओस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिसकी वजह से blood remain in the blood vessels. It prevent the outflow of blood. So first of all, plasma proteins maintain colloidal osmotic pressure of the blood. Due to presence of protein in the blood, colloidal osmotic pressure is maintained and it does not allow outflow of blood from the blood vascular space. 75% of the colloidal osmotic pressure is maintained by the protein albumin and 25% by globulins, while fibrinogen has no role in maintaining colloidal osmotic pressure of the blood. The first function of the blood is the maintenance of colloidal osmotic pressure by the plasma proteins. Then, second role, transport of materials. Blood helps to transport material in the body, including nutrients, water, salts, and waste products. Nutrients, digested food from the digestive system, is carried to all parts of the body via blood. Similarly, the transport of water is also carried out by blood, transport of salts, and the waste products from the different cells is carried to the organ, which are then subsequently excreted. The transport of material within the body, such as nutrients, water, salts, and waste products, carried out by the blood. At the same time, all hormones are transported by the blood from the endocrine tissue to the target cells. What are the endocrine tissues? The tissues which produce hormones, and these hormones are directly poured into the blood. Target cells क्या होते हैं? Hormones reach every part of the body, every cell of the body via blood, but only certain cells give response. चंद सेल ही रिस्पॉन्ड करते हैं. वो जो सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन्स को, उन्हें टारगेट सेल्स कहते हैं. Third role is the transport of gases. Respiratory gases such as oxygen, carbon dioxide are also transported by blood. The fourth role is body defense. Blood helps in body defense against diseases. Neutrophils and monocytes, these the white blood cell which engulf and destroy invading microorganisms such as bacteria. Neutrophils और monocytes जो white blood cell की types हैं, वो हमलावर माइक्रो जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, सच एज बैक्टीरिया, स्पोर्स वगैरह, उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, जो बॉडी की डिफेंस करते हैं. फिफ्थ रोल इज इम्यूनिटी.
blood provides immunity by lymphocytes. Lymphocytes white blood cell की type जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजेंस. Then another defensive role of the blood, defense proteins. Blood produces interferons. Interferons are the larger proteins which digest the nucleic acid of viruses. Interferons larger proteins hoti hain which are produced by the blood, and these proteins digest the nucleic acid of the virus. In this way, help the body to fight against the viral diseases. Blood produces interferon and antitoxins against a poison, against the toxin, which are proteins. Interferon or antitoxin, दोनों proteins होती हैं, they are produced by the blood and they protect our body from the nucleic acid and toxin of the invading organism. Interferon न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करती हैं वायरसेस के और उनकी रेप्लिकेशन को रोक देती हैं, और एंटीटॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जहर होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनके खिलाफ प्रोटीन्स होती हैं. यूं ये भी ब्लड का रोल है इन द बॉडी डिफेंस. तो बॉडी डिफेंस में ब्लड 3 किस्म का रोल प्ले करता है. एक तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को डाइजेस्ट कर देते हैं इंगल्फ करके, और लिम्फोसाइट का रोल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके करते हैं, और इसके अलावा ब्लड इंटरफेरॉन और एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करके भी बॉडी का डिफेंस करता है. देन 7th रोल, pH मेंटेनेंस. Blood act as a buffer the substance which tend to maintain the pH. जो pH को ना कम होने देते ना ज्यादा होने देते हैं, उन्हें बफर्स कहते हैं. तो ब्लड बफर के तौर पे काम करता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द बॉडी. 8th रोल है होम्योस्टेसिस. Homeostasis mean to keep internal environment within the tolerable range, within the narrow range. Internal environment को narrow range तक रखना. Internal environment में आने वाली changes को with a narrow range रखना, जैसे body का temperature है, concentration of water है, salts है, इसको एक खास हद तक रखना ताकि body की physiology work कर सके. Blood helps in maintaining the body temperature, concentration of water and salts, thus help in homeostasis. 9th role, exchange of material. Wall of the blood vessels help in the exchange of material between the blood and the body tissue through blood capillaries via interstitial fluid. Interstitial fluid आगे जाकर हम बात करेंगे अगले लेसन्स में. ब्लड कैपिलरीज में से जो लिक्विड निकलकर सेल्स के दरमियान जो खाली जगह है वहां आ जाता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स वाया टिश्यू फ्लूइड. ब्लड वेसल्स से मटेरियल्स निकलकर बॉडी के सेल्स में जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में से होते हुए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से होते हुए. इसी तरीके से वो सब्सटेंसेस जिन्होंने सेल से ब्लड में आना है वो भी सेल से निकलकर पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में जाते हैं. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ये ऑलमोस्ट रेपिटेशन है पहले एक हेडिंग की. ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट. यहां इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद टेम्परेचर, सॉल्ट्स, मुख्तलिफ सल्यूट्स की कंसंट्रेशन, इवन हार्मोन की कंसंट्रेशन. Blood help to in maintaining the internal environment by producing heparin, histamine. Heparin आपको पता है एक केमिकल है which is produced by white blood cell which prevent blood clot
or histamine is a chemical produced by the white blood cell that cause inflammation, and also maintain amount of chemical including water, salts in the body, and maintain body temperature to a constant or nearly constant level. आखिरी बात, blood clotting. Blood helps in blood clotting process and seal the wound that stop the entry of pathogen into the body. आपको पीछे बताया गया था कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, वो एक खास तरीके से एक्ट करती हैं प्लेटलेट्स के साथ मिलकर, जिसकी वजह से वाउंड वाली जगह पे टेम्पररी सील बन जाती है और यूं लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता और पैथोजन की एंट्री जो है वो स्टॉप हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ वाउंड. These are the some of the functions related to blood. Now, next disorders related to blood. There are certain disorders related to blood. Some of them are, number one, leukemia, that is blood cancer. It is the result of uncontrolled production of white blood cell, leukocyte. बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ल्यूकोसाइट अनकंट्रोल्ड प्रोड्यूस होते हैं, और एज अ रिजल्ट देयर इज अ great increased number of abnormal white blood cell in the circulating blood. Leukemia is usually characterized by greatly increased number of abnormal white blood cell in the circulating blood. बस औकात ब्लड में ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं. आमतौर पर 8000 से 9000 पर मिलीमीटर क्यूब व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया में ये तादाद मिलियंस में पहुंच जाती है. और ये व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो पूरी तरह डिफरेंशिएट भी नहीं होते, वो डिफेक्टिव होते हैं. तो व्हाट इज ल्यूकीमिया? Uncontrolled production of white blood cell. As a result, there is a great increase in the number of white blood cell in the circulatory fluid. इसकी वजह क्या है? This is caused by the cancerous mutation of myelogenous or lymphogenous cells. ये myelogenous bone marrow cells होते हैं जिनसे white blood cells बनते हैं. माइलोजिनस और लिम्फोजिनस, वाइट माइलोजिनस बोन मैरो सेल्स होते हैं जिनसे व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, और लिम्फोजिनस सेल जो हैं इनसे लिम्फोसाइट्स बनते हैं. इनके अंदर कैंसरस म्यूटेशन हो जाती है. म्यूटेशन मीन चेंज. म्यूटेशन मीन चेंज इन डीएनए. कैंसरस म्यूटेशन मीन उन जीन्स में म्यूटेशन जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है. तो माइलोजिनस सेल और लिम्फोजिनस सेल में कैंसरस म्यूटेशन की वजह से ल्यूकेमिया होता है. माइलोजिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो एंड मे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. उस कैंसरस म्यूटेशन की वजह से वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, सो दैट द व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन मेनी अदर ऑर्गन्स. कई जगहों पे व्हाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, एंड दीज व्हाइट ब्लड सेल आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड. वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, पूरी तरह डिफरेंशिएट नहीं होते, डिफेक्टिव होते. देन देयर आर different types of leukemia. Leukemia may be of different types depending upon the types of the white blood cell which are undifferentiated and being produced at the faster rate than the normal rate. ल्यूकीमिया की टाइप्स हैं. इन टाइप्स का इन्हिसार किस बात पे है कि कौन से व्हाइट ब्लड सेल अनडिफरेंशिएटेड प्रोड्यूस हो रहे हैं और
नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। देयर मे बी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया जिसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा बनते हैं, इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया इओसिनोफिल ज्यादा बनते हैं, बेसोफिलिक ल्यूकीमिया में बेसोफिल ज्यादा बनते हैं, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में मोनोसाइट ज्यादा बनते हैं, और लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में लिम्फोसाइट ज्यादा बनते हैं। क्योर एंड ट्रीटमेंट। देन this is a very serious disorder. It is a very serious disorder, and the patient need to change the blood regularly with a normal blood got from the donor. ऐसे पेशेंट्स का ब्लड को रेगुलरली चेंज करना पड़ता है। ये टेम्पोररी ट्रीटमेंट ये है। इट कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। परमानेंट ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। किसी डोनर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है पेशेंट में। इट इज मच मोर कॉस्टली, इफेक्टिव है लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। इट इज आल्सो कॉल्ड कूलेज अनीमिया ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी कूले, अमेरिकन पेडियाट्रिशियन। थॉमस बी कूले अमेरिकन चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। उसने इस डिजीज को सबसे पहले डिस्कवर किया, उसी के नाम पे इसको कूलेज अनीमिया बोलते हैं। इट इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी। ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसकी एबनॉर्मेलिटी है, और जीन के जरिए इसकी ट्रांसमिशन होती है। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स और टाइनी रेड ब्लड सेल, बाय स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली मीन इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन में इनलार्जमेंट की वजह से या बोन के अंदर स्किन में चेंजेस की वजह से माइक्रोसाइट्स बहुत ज्यादा बनते हैं, टाइनी वाइट रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट इज टू बी रिप्लेस रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड। ऐसे पेशेंट के ब्लड को भी रिप्लेस करना पड़ता है नॉर्मल ब्लड से। और इसका क्योर, इसका ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन डज नॉट गिव 100% क्योर रेट। रिजल्ट भी 100% नहीं होते। ऐसे पेशेंट में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन मोस्ट केसेस डज नॉट हैव अ बीटा चेन्स। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ज्यादातर बीटा चेन्स नहीं होती। इंस्टेड एफ चेन इज प्रेजेंट, फीटल हीमोग्लोबिन। जो फीटस के वक्त, फीटस किसे कहते हैं, जब ह्यूमन एम्ब्रियो, मैमल का एम्ब्रियो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त उसको फीटस कहते हैं। तो फीटस के वक्त जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 गैमा चेन्स होती हैं। वो डिफरेंट होती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से। तो ऐसे पेशेंट में कि हीमोग्लोबिन में बीटा चेन्स नहीं होती, तो रादर फीटल हीमोग्लोबिन होती है, एफ चेन्स होती हैं। Then the third disorder is edema. It means the presence of excess fluid in the tissues of the body. बॉडी टिश्यूज में फ्लूइड ज्यादा होता है। आमतौर पर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में से लिक्विड निकलकर टिश्यूज के दरमियान आता है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है। लेकिन जो एडिमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड जरूरत से ज्यादा होता है। ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेसल से लिक्विड वाटर ज्यादा बाहर निकलता है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है। द एक्सेस फ्लूइड मे बी इन द सेल्स,
जिसे वो इंट्रासेलुलर ओडिमा बोलेंगे, और आउटसाइड द सेल इसको एक्सेस सेलुलर ओडिमा बोलते हैं। तो व्हाट इज ओडिमा? Presence of excess fluid in the tissues of the body, or if excess fluid are present within the cell, then this is intracellular edema, or if it is present outside cell, then this is extracellular edema. Cause क्या है? Intracellular edema is caused by osmosis of water into the cells. वाटर ओस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर एंटर हो जाता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम डिप्रेस हो जाता, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। और खास तौर पर जो सोडियम पंप्स होते हैं, जो सोडियम आयन की इन आउट मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो उनकी वर्किंग मुतासर होती है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा की दो वजूहात हो सकती हैं। एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, or failure of lymphatic system to return the fluid from the interstitial fluid। होता यह है कि ब्लड कैपिलरीज में से लिक्विड निकलकर सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस आते हैं उसमें जमा होता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस ब्लड में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट में या तो ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड निकल ही ज्यादा रहा, लीकेज ज्यादा हो रही है, एबनॉर्मल लीकेज हो रही है, या लिम्फेटिक सिस्टम जो है उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड में नहीं भेज रहा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की वजह क्या है? एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज और फेलियर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अलावा एडिमा इज कास्ड बाय द रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। किडनी से रिलेटेड बात है। किडनीज, पेशेंट के किडनीज जो हैं वो सॉल्ट और वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो बॉडी के अंदर रिटेन रहता है। ओडिमा इज कास्ड बाय रीनल रिटेंशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। किडनी सॉल्ट और वाटर को रिटेन रख रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर वैसे ही ज्यादा रहता है। ओडिमा disturbs the exchange and concentration of minerals and ions in the blood and the body cells। ओडिमा की वजह से बॉडी सेल और ब्लड के दरमियान मिनरल्स और आयन का एक्सचेंज डिस्टर्ब होता है, जिससे ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा, हार्ट लोड बढ़ेगा और उससे आगे मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। दीज आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्लड। थैंक यू वेरी मच।